Hey everyone, let's begin the class. I took the subject economics of class 11th first. Okay, the subject of class 11 economics. Let's move on. Mm. This is your syllabus of economics of class 11th. Let's take a look on what the syllabus is saying. What are chapters you will learn in class 11th? The first chapter is the basic concepts in economics. Second comes money, then partition values, the economy of Maharashtra, rural development in India, population in India, unemployment in India, poverty in India, and that's so on. Total 10 chapters you have. From the exam point of view, I don't think so. All chapters will come. Sometimes sometimes they omit the full one chapter, or if they don't omit the full chapter, they omit some part of some concepts of the chapters. Okay, now let's move to our first chapter, that what is saying the basic concept in economics. 11 12 is a class where you will make your economics basics very strong. इकोनॉमिक्स और कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका बेसिक्स कहाँ से शुरू होता है? 11 12 क्लास से ही शुरू होता है. तो 11 12 क्लास में तुम बेसिक्स पकड़ लेते हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हो, तो तुम्हें फर्दर जब तुम डिग्री में जाते हो तुम्हें बहुत इजी पड़ता है. ओके, इस 11 12 के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है. सो वी हैव अ फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स. इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं. Okay, let's begin with the introduction. What the intro is saying. Today's world is marked by scientific invention and discoveries. This remarkable scientific progress. Wait a second. Okay. Today's world is marked by scientific invention and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is the science? What is the science? Science is the systematic body of language. Yes. क्या है साइंस? साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है. किसी एक विषय पे, एक सब्जेक्ट पे जब कोई स्टडी करता है, कुछ उसका साइंटिफिक प्रूफ निकालता है, तो उसको साइंस कहते हैं. ओके, देन इट से देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस? वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइंस, natural science and social science. Okay, what is natural science? Natural science is one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled conditions. Yes, natural science क्या होता है? Natural science वो होता है जो लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, जिसके जो टेस्ट करके कंडीशन निकलती है. नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस. नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द एम्पेरिकल अप्रोच to the study. Example, mathematics, physics, chemistry. What is, अभी ये जो ब्लू में हाईलाइट वर्ड किया है, ये दिख रहा है एम्पेरिकल अप्रोच. तो ये आपको टेक्स्ट बुक में जगह जगह पे मिलेंगे. ये क्या है ब्लू वाले वर्ड? ये आप टेक्स्ट बुक के नीचे आओगे तो आपको इसके मीनिंग्स लिखे हुए मिलेंगे. आपके लिए वो सुविधा भी बनाई है. मीनिंग्स लेट मी, कहाँ है ये देखो लिखा ना कि ग्लॉसरी है ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स. ये इधर है. या हियर इट इज एम्पेरिकल अप्रोच. क्या लिखा है? इट इज एंड, नहीं, ओके, हियर इट इज एंड evidence based approach that relies on real world data to study and interpret information. real world data जो लोग निकालते हैं, ओके, स्टडी होती है डेटा पे, उसको इंटरप्रेट करते हो, उसमें कुछ
सोल्यूशन निकालते हैं, दैट इज नेचुरल साइंस। ऊपर चले जाते हैं वापस। ओके, समझा नेचुरल साइंस। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सोशल साइंस। Okay, what is social science now? Social science is called abstract or behavioral science because it is related to the study of social aspect of man as a member of society. सोशल साइंस क्या है? इसमें इंसानों और समाज का जो स्टडी होता है, स्टडी किया जाता है, उसे सोशल साइंस कहते हैं। सोशल साइंस को क्या बोला है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियर साइंस। और नेचुरल साइंस को क्या बोला था? नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। ओके, सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियर साइंस भी कहते हैं। लेट्स मूव फर्दर। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Sociology is related to the study of social aspect of man as a member of a society. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. Hence, the laws of social science are not universal, but they are only statements of general human tendency. Very important thing. सोशल साइंस, जैसे नेचुरल साइंस को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशंस लेबोरेटरी में, सोशल साइंस को ऐसे नहीं कर सकते। ओके, सोशल साइंस ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करता है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को स्टडी करता है। सो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओके, तो ये था हमारा इंट्रो वाला पार्ट। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। Here we are. Meaning of economics. Economics is a social science. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia, which means management of the household. Economic एक क्या है? Economic social science में आता है, वो natural science नहीं है। Economics is a social science. द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। उसका नाम क्या है? ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। नेक्स्ट फर्दर, इकोनॉमिक इज रिफर टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा गया है। इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत ओके। Economics is referred to as a queen of social science by Paul Samuelson. Economics deals with the economic aspect of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इकोनॉमिक्स ये क्या इट डील्स विथ ह्यूमन बींग्स। किससे डील करते हैं? ह्यूमन बींग्स के इंसान अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्स में कैसे फुलफिल करता है, कैसे पूरा करता है अपने वांट्स को। अनलिमिटेड वांट्स होते हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उसके बारे में बताया है यहाँ पे। Let us understand the nature of economics with respect to some popular definitions. या किस साइंटिस्ट ने पॉपुलर डेफिनेशन जो 3 साइंटिस्ट यहाँ बताए गए, हम पढ़ेंगे आगे। पहले यहाँ पर क्या किया है अभी? रिफ्रेश ऑफ मेमोरी। ओके, वो चलेगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बताया या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटल, मैं आपको तीनों बताती हूँ क्या होता है। कैपिटलिज्म को पूंजीवाद भी कहते हैं। निजी लोगों का अधिक नियंत्रण होता है उसमें। ओके, कैपिटलिज्म। सोशलिज्म समाजवाद, सोशली सरकार का अधिक नियंत्रण होता है उसमें।
और मिक्स्ड इकोनॉमी सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का मिलकर काम करते हैं। मिक्स्ड तो इंडिया किस में आया? इंडिया आता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ओके, अभी हम बताए कौटिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्याज व्यू, ये कौन है? ये कौटिल्य जी है। और आता कौटिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्या से क्या व्यू? अर्था मीन्स, कौटिल्या जी कहते हैं अर्था मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो यहाँ से क्या निकलता है? इकोनॉमिक का वर्ड अर्थशास्त्र। अर्था मीन्स वेल्थ एंड अर्थ means wealth and shastra means science. Arthashastra implies the science of acquiring and managing wealth. Implies the science of acquiring and managing wealth. Wealth को कैसे acquire करना है, manage करना है. Essentially, अर्थशास्त्र is a treatise on political economy in its broadest sense. की पॉइंट्स ऑन कौटिल्याज व्यूज। कौटिल्याज व्यूज के कुछ की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो है मतलब उनके विचार। फर्स्ट, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और स्टेट का क्रूशियल रोल। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। थर्ड, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। फोर्थ, कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। क्या बोला है? राज्य गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में। फिर देश की संपत्ति वेल्थ बढ़ानी चाहिए। अच्छी, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है? अच्छी प्रशासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे जनता का कल्याण वेलफेयर होता है। तो ये कौटिल्य जी कहते हैं। Do you know Kautilya was a great statesman, philosopher, economist, and a royal advisor during the Maurya period. He is also known by the name Chanakya और विष्णुगुप्ता। क्या बोलते हैं कौटिल्य जी को? चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं। कौटिल्या ऑथर द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। ओके, अभी डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला डेफिनेशन जिसने दिया है, फर्स्ट डेफिनेशन दिया है एडम स्मिथ, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ का पहला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उनका डेफिनेशन okay, what Adam Smith says. Classical economist Adam Smith, also regarded as the father of economics. Adam Smith को क्या कहा जाता है? उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क। उन्होंने बुक लिखी, इसका नाम है पीस ऑफ वर्क, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो क्या डिफाइन करते हो इकोनॉमिक को? एज साइंस ऑफ वेल्थ। अभी एडम स्मिथ के डेफिनेशन में की पॉइंट्स कुछ आते हैं। तो मेन एडम स्मिथ क्या कहना चाहता है? धन, वेल्थ कमाना और उसके सही उपयोग करना अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका मेन फोकस वेल्थ पे होता है। एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू साइंस ऑफ वेल्थ है। मतलब इकोनॉमिक्स का मेन फोकस वेल्थ यानी धन कमाना और बढ़ाना है। की पॉइंट्स जो ये बोलते हैं, फर्स्ट उनका की पॉइंट्स होता है लेसेस फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। आपको आगे भी आएगा, जब आगे पढ़े हुए आगे जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, लेसेस फेयर पॉलिसी, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। Less is fair, it is non-intervention of the government. Second is capital and wealth accumulation. Then third is nature's law in economic affairs. Fourth come division of labor as an aspect of growth theory. क्या है ये पॉइंट्स? पहला पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए। ओके, फिर वेल्थ और कैपिटल बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। नेचर के रूल्स फॉलो होने चाहिए। डिविजन ऑफ लेबर, काम का बांट कर करने से प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उनका ये कहना है। ओके, नाउ एज इंफॉर्मेशन डू यू नो, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो।
सेकेंड कम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले कौन थे हमारे? एडम स्मिथ थे, एडम स्मिथ ही थे ना? यस, उनका था वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अभी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हैं वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, आप लोग नींद में ना हो तो बता दूं हम यहाँ पे, हम इस पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। Okay, neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book entitled Principles of Economics. अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? Principles of Economics, which was published in 1890. His definition states, इनका डेफिनेशन क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of wealth. क्या कहते हैं? मार्शल के हिसाब से, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंसान की वेलबिंग भी होनी, वेलबिंग का भी स्टडी है। इन्होंने ज्यादा फोकस वेल्थ पे नहीं किया है, इन्होंने मैनकाइंड पे, मैन की वेलबिंग पे किया है। की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल के की पॉइंट्स जो उन्होंने दिए: फर्स्ट, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, आम इंसान की स्टडी, नॉर्मल मैन। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियर साइंस, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या बोल रहे हैं? ऑर्डिनरी मैन, नॉर्मल इंसान का स्टडी, इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू बिहेवियर साइंस है। मटेरियल वेलफेयर, जीवन को बेहतर बनाना, मतलब मटेरियल वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, जीवन को बेहतर बनाना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वेल्थ ही सब कुछ नहीं है, ये इनका कहना है। अब ये भी ब्लू में हाईलाइटेड है, मटेरियल वेलफेयर वर्ड। सो वी गो ऑन डाउन, हम इसको भी देखेंगे, व्हाट इज द मटेरियल वेलफेयर। Yeah, here it is. It refers to the fact or state of having enough housing, clothing, food and possessions etc. to live comfortably. Okay, मतलब सुविधा, इंसानों को ये सब सुविधा, उनका जीवन बेहतर बनाना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये था की पॉइंट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। नाउ थर्ड कम लियोनल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी थर्ड कौन आए हैं? लियोनल रॉबिन्स आए हैं। इनका डेफिनेशन किस पे फोकस्ड है? स्कैरसिटी ओरिएंटेड है। स्कैरसिटी यानी कमी। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इनका डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है। रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये इनकी बुक का नाम है, पब्लिश 1932, मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इनका डेफिनेशन क्या बोलता है? Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Okay, such a easy definition. Economics is a science है which studies करता है human behavior relationship between ends and scarce means और ends यानी हमारी wants and scarce means limited, scarce mean कम resources which have alternative uses. की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन की पॉइंट्स कुछ बताए हैं। फर्स्ट वन इज वॉन्ट्स, दैट इज एंड्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमंस की वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, एंड फोर्थ इज मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या बोला है? लियोनल रॉबिन्स कहते हैं
रॉबिन्स के हिसाब से ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट नीड्स को प्रायोरिटी दो। एक रिसोर्सेज एक रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये था लियोनल रॉबिन्स का डेफिनेशन जो कि बहुत फेमस है। डू यू नो थॉट नेम ऑफ द इकोनॉमिक्स? आप ये भी रीड आउट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जस्ट आप तो एज ए इंफॉर्मेशन आपको दिया है। नाउ कम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। Branches of economics. In 1933, Sir Ragnar French coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. Branches कितने branch की type कितने branches of economics है? There are two branches of economics. First is microeconomics and second is macroeconomics. क्योंकि अगेन ग्रीक वर्ड से आए हैं माइक्रोज एंड मैक्रोज, ये भी याद रखना। First, we'll study what is microeconomics. Micro means small. Microeconomics deals with the behavior of the individual variables such as household, worker, firm, industry, etc. Micro means small. माइक्रो में छोटे स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इनमें इसमें इसका अध्ययन किया जाता है जैसे कि एक फैमिली, वन हाउस होल्ड, वन कंज्यूमर, वन फर्म, कंपनी, किसी चीज की कीमत, प्राइस, मजदूर, वेजेस, इनकम, पर्टिकुलर पर्सन की। ओके, तो ये होते हैं मैक्रो, ये है सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। नाउ विल सी कैनेट बोल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है किसने? कैनेट बोल्डिंग्स ने। वो क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, वी आर हियर, ओके, हम ये पढ़ रहे हैं। Microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual price, wages, incomes, individual industries, particular commodity, जो मैंने बताया। आगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि जानना जरूरी है। उसमें फर्स्ट क्या आता है? वांट आता है। वांट वांट यानी हमारी इच्छा, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। इट इज ओके, want. It is difficult to define want in few words. Yes, wants को few words में define करना है तो difficult. In common language, want can be referred to as a need. Want को need भी कह सकते हैं। In economics, want denotes a feeling of lack of satisfaction. With this feeling enables the individual to satisfy his wants. Human wants have grown in number for two basic reasons. Wants increase हुई है year by year. कैसे, क्यों इंक्रीज हो रही है वॉन्ट्स? सब मतलब इंसानों की वॉन्ट्स, इतने पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की भी वॉन्ट्स क्यों इंक्रीज हो रही है? टू रीजंस बताए। फर्स्ट, डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन, एंड सेकंड इज राइज इन पॉपुलेशन। मेन पॉइंट, वॉन्ट क्या है? हमारी इच्छा है। वॉन्ट का मतलब है किसी चीज को पाने या उपयोग करने की इच्छा। जैसे हमने नया मोबाइल खरीदने की इच्छा, हमें आइसक्रीम खाना है, हम आइसक्रीम खाने की इच्छा, नई बुक्स पढ़नी है, बुक्स खरीदनी है, बुक पढ़ने की इच्छा। तो जो हमारा मन करता है, जो हमारी इच्छा है, हमें हमें वो चाहिए, दैट्स द वांट। ह्यूमंस की इच्छाएं क्यों बढ़ती है? दो रीजन से बढ़ी है, जैसे टेक्स्ट बुक में बताया है। फर्स्ट इज नई नई खोज और आविष्कार होने से लोगों को नई चीजों की जानकारी मिलती है, तो उन्हें वो नई चीज चाहिए होती है। नए नए इनोवेशंस होते हैं, नए टेक्नोलॉजीज आती है, तो ह्यूमंस को पता चलता है। फिर सेकंड आता है राइज है, जब जनसंख्या बढ़ने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ती है। दैट्स ट्रू, राइज इन पॉपुलेशन से भी वांट्स बढ़ती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स? अभी वांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? यहाँ पर हमें पूरे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जो कि इंपॉर्टेंट भी है। सो characteristics of want, first one,
Wants are unlimited. Wants are unlimited. Wants not only arise again and again, but they are also unending. If one want gets satisfied, another arises. Wants go on multiplying in number. हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी दूसरी इच्छा भी बाद में तैयार रहती है. हमने हमें मोबाइल मिला, सादा फोन था, लेकिन हमारी आगे इच्छा होती है हमें आईफोन चाहिए, फिर और आगे होता है हमें लैपटॉप चाहिए, फिर हमें टू व्हीलर चाहिए. तो हमारी वॉन्ट्स आर अनएंडिंग है. ओके, एक वॉन्ट सेटिस्फाइड हो जाती है तो दूसरी उत्पन्न भी हो जाती है मन में. सेकेंड, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. कुछ कुछ वॉन्ट्स होती है जो रिकरिंग होती है. सेवरल ह्यूमन वॉन्ट्स अकर अगेन एंड अगेन while some might be only occasional. अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, वॉन्ट्स आर रिकरिंग नेचर, मतलब कुछ कुछ वॉन्ट्स जो हमें रोज होती है, जैसे खाना खाने की, खाना तो हमें रोज ही खाना है, पानी पीना है, पानी भी रोज पीना है, तो ये रिकरिंग वॉन्ट्स हो गई जो जो हमें रोज होती है, जो रिकरिंग इन नेचर है. ओके, wants differ. Third is wants differ with age. Of course, wants and the satisfaction differ as per the chronological age. जैसे इस इमेज में आपको बताया है, ये एक बच्चा है. ओके, इसकी क्या वॉन्ट्स है, खिलौने से खेलने की, तो इसको क्या चाहिए, इसको खिलौने चाहिए. ये एक यंग मैन है, इसको क्या चाहिए, टू व्हीलर चाहिए चलाने को, बिकॉज ऑफिस में जाना होता है. ओके, नाउ दिस इज ग्रैंड माँ. सो शी नीड्स अ बुक्स, शी नीड्स रेस्ट, शी नीड्स मेडिसिन. तो ये ग्रैंड माँ की वॉन्ट है. तो मेन पॉइंट को समझना है, वॉन्ट्स डिफर विद एज. जैसे आपकी एज है उसके हिसाब से आपकी वॉन्ट्स है. फोर्थ इज वॉन्ट्स डिफर विद जेंडर. जेंडर के हिसाब से भी वॉन्ट डिफर्स होती है. यस, ऑफ कोर्स. मैन एंड वुमेन की वॉन्ट्स एक जैसे तो होगी नहीं, ऑफ कोर्स अलग होती है. मैन एंड वुमेन वॉन्ट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. कपड़े उनके अलग होते हैं, उनके एक्सेसरीज अलग होते हैं, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस यानी हमारी पसंद, हमें क्या पसंद है. इंडिविजुअल की हैबिट्स अलग है, टेस्ट अलग है, प्रेफरेंस मैटर्स अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वॉन्ट्स ऑफ द पीपल. तो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उनकी वॉन्ट्स अलग अलग होती है. फिर आता है वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन. वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ सीजन, ऑफ कोर्स. अभी इस यहाँ आप देख सकते हैं, ये है क्या है, ये है रेनी सीजन. तो यहाँ क्या चाहिए, या अम्ब्रेला चाहिए या रेनकोट चाहिए. ये है विंटर, यहाँ स्वेटर चाहिए, जैकेट्स चाहिए ठंड से बचने के लिए. ये है समर. समर में यहाँ पर कॉटन के क्लोथ्स, एसी चाहिए, ऑफ कोर्स एसी घर में, फैन. ओके, तो वॉन्ट्स differ with season. Next, wants differ due to culture. Differences in culture influence wants that are related to food, dressing style, etc. कल्चर बोला है, हर एक कल्चर का अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उनके अलग अलग फूड वो लोग खाते हैं, तो उसके हिसाब से वॉन्ट्स तभी भी डिफर करती है ना. किसी के कल्चर में कुछ त्योहार में ऐसे ड्रेसअप होते हैं, किसी में अलग ड्रेसअप होते हैं उनके त्योहार में, तो वॉन्ट्स उसके हिसाब से भी डिफर करती है कल्चर के हिसाब से. ओके, सो हमने आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट. हमने फर्स्ट चैप्टर हमने उठाया बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स हमने देखा. हमने इंट्रो पढ़ा और नेचुरल साइंस सोशल साइंस के बारे में पढ़ा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखा, कौटिल्यस जी के व्यूज देखे हमने. फिर डेफिनेशन हमने देखी इकोनॉमिक्स. हमें थ्री साइंटिस्ट हमें मिले हैं. पहले है एडम स्मिथ के वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन हमने देखा, अल्फ्रेड मार्शल्स के वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन हम देखा, और लियोनेल रॉबिन्स का स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस भी हमने पढ़ा. फिर हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा. क्या कितने ब्रांचेस थे, 2 ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो उसमें कहा हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पहले कवर अप कर रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने देखा
फिर हमने कैनेट बोर्डिंग्स का डेफिनेशन देखा, जो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है वो हमने पढ़ा। उसमें बेसिक कंसेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। उसमें पहला हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा है, वांट। वांट में हमने वांट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। अभी हम फर्दर अभी नेक्स्ट क्लास से हम आई थिंक यहाँ तक बस, मतलब नेक्स्ट for the next class we'll do class from the classification of wants. So that's it. जो भी ये पॉइंटर्स होते हैं ना, आप क्या करने का, एक अपनी बुक ले, उसमें ये जो हेडिंग होती है ना, अभी डेफिनेशन में आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन से आप ओपन से नहीं कर सकते। डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन में कोई आप अपने ओन का नहीं डाल सकते, वो फुल रॉन्ग हो जाता है। नहीं, ओके, तो डेफिनेशन आपको एज इट इज लिखना पड़ता है। ये जो पॉइंटर्स वाले जो आंसर्स आते हैं, 7-8 जो पॉइंट्स लिखने रहते हैं हमें, उसमें आप क्या करने का, पहला हेडिंग याद रखने की। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग नेचर, ये एक बुक में लिख दो हेडिंग। फिर अपनी ओन लैंग्वेज में, व्हाट्सएप लैंग्वेज में अपन लिख लिया, हिंदी में लिखते वांट्स आर अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। इंसान की वांट्स कभी खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड अनएंडिंग होती है, एक वांट खत्म दूसरी शुरू होती है। वो अपने अपने लैंग्वेज में लिख लिया। फिर जब एग्जाम के टाइम अपनी बुक खोलोगे तो आपको सिर्फ वो देखना है, फिर आप एग्जाम में आपको वही इंग्लिश में लिखना है, बस। नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, बहुत इजी पड़ता है। तभी मैंने भी खुद किया है, मुझे बहुत इजी पड़ा है। ऐसे रट रट के आप कितना रटोगे, रटा तो नहीं जाता। समझ के पढ़ोगे तो आपका ब्रेन पे बर्डन भी कम रहेगा। ओके, so that's it. Any doubt regarding the lecture, anything, you can ask me in the comment section. And if you like the video, you understood what I taught, just give a like to this video. And you need a further lectures, and you like my videos, to subscribe my channel and hit that bell icon so that आपको notifications मिल जाए मेरे further new videos की। Okay, till then keep learning and keep growing. Bye bye.